نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ نئی دہلی، چنئی، کرناٹک، ساحلی کرناٹک اور دیوبند سمیت کئی علاقوں میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ کرناٹک، کمار سوامی پرمیشور نے سبھی ممبران اسمبلی کا حمایتی خط سونپا، قانونی صلاح لیں گے گورنر۔ کرناٹک میں کانگریس بی جے پی نے نہیں، اس نے روکا بی جے پی کا وجے رتھ۔ کرناٹک انتخابات، کمار سوامی کا بی جے پی پر الزام، ممبران اسمبلی کو دیا 100 کروڑ روپے کا آفر۔ کرناٹک انتخابات میں کیجریوال نہیں کھول پائے اپنا کھاتہ، تمام امیدواروں کی ضمانت ضبط۔ اگر سب سے بڑی پارٹی کا حق تو گوا، میگھالیہ میں کانگریس کیوں نہیں؟ غلام نبی آزاد کا تلخ سوال۔ کانگریس ممبر اسمبلی کا دعویٰ، بی جے پی نے حمایت کے عوض میں وزیر بنانے کی پیشکش کر دی۔ بی جے پی نے مسلم علاقوں میں لگائی سیندھ، کانگریس کو اٹھانا پڑا بڑا نقصان۔ وارانسی حادثہ، راج ببر بولے پل کے لیے توڑے گئے تھے 3 مندر، یہ بھگوان کا ہے قہر۔ ممبئی ہائی کورٹ، مسلم خاتون کو گھریلو تشدد پر دیا جائے گا تحفظ، بیوی اور بچوں کو ماہانہ بھتہ اور کرایہ۔ وارانسی حادثے کے بعد 4 افسر معطل، تشکیل دی گئی 3 رکنی کمیٹی، 15 دنوں میں دینی ہوگی رپورٹ۔ یورپی شاہی خاندانوں کی ملکیت رہنے والا نیلا ہیرا آج $53 لاکھ میں نیلام ہو گیا۔ اسرائیلی دہشت گردی نے غزہ میں شیرخوار بچی کی جان لے لی۔ غزہ میں مظاہرے جاری، اسرائیلی دہشت گردی میں مزید 2 فلسطینی شہید، 16 افراد سپرد خاک۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیدھی بات میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر رؤیت ہلال کو لے کر کے ہے۔ تلنگانہ ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ چنئی میں چاند نظر آ گیا ہے، تمل ناڈو میں بھی چاند نظر آ گیا ہے۔ کل سے یعنی جمعرات سے پہلا روزہ ہوگا۔ آج سے تراویح کی نماز کا اہتمام ہوگا۔ ملک کے مختلف حصوں سے چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اہم اطلاع ہے کہ تلنگانہ میں کل پہلا روزہ ہے۔ کرناٹک میں مولانا افتخار احمد قاسمی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ کرناٹک میں بھی چاند نظر آ گیا ہے۔ کرناٹک کی رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی کل پہلے روزے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ذرائع سے خبر ملی ہے، براہ راست دفتر سے خبر نہیں ملی ہے۔ کرناٹک میں جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا۔ نئی دہلی، چنئی، کرناٹک، ساحلی کرناٹک اور دیوبند سمیت کئی علاقوں میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ چنئی میں چاند نظر آنے کی اطلاع ہے، جبکہ بنارس میں رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے پرسوں پہلا روزہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک کے ہلال کمیٹی کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں ہے، مگر معتبر ذرائع کے مطابق بنگلور کے اکثر مساجد میں کل سے پہلے روزے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گدگ اور چترادرگا میں کرناٹک کے علاقوں میں باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ بھٹکل جو کہ کرناٹک کے ساحلی علاقہ ہے، منگلور اور یہاں سے لگے تمام تر علاقوں میں معزز و محترم قاضی صاحبان کا اعلان ہو چکا ہے۔ پنجاب اور مغربی بنگال، کشمیر سمیت کئی ریاستوں میں بھی کل سے رمضان کا آغاز کا اعلان ہو چکا ہے۔ نوٹ، آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ معتبر ذرائع سے یہ اعلان آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک بار اپنے مقامی مساجد یا امارت شرعیہ یا قاضی صاحبان سے ضرور رجوع کر کے اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ بہرکیف سیدھی بات کی جانب سے تمام اہلیان اسلام کی خدمت میں رمضان مبارک کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو سمجھنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اب خبر بنگلورو سے۔ کمار سوامی پرمیشور نے سبھی ممبران اسمبلی کا حمایتی خط گورنر کو سونپ دیا ہے۔ گورنر قانونی صلاح لیں گے، اس طرح کی اطلاع دی گئی ہے۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد وہاں سیاسی حالات تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کانگریس اور جے ڈی ایس اب اپنے ممبران اسمبلی کی دستخط شدہ خطوط کے ساتھ گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی تھی، بلکہ جا چکے ہیں۔ قبل ازیں غلام نبی آزاد نے الزام لگایا ہے کہ آج ہم نے 2 مرتبہ 12 بجے اور پھر 11:30 بجے گورنر سے ملاقات کے لیے وقت مانگا، لیکن ہمیں اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ خیال رہے کہ کانگریس اور جے ڈی ایس نے اپنے سبھی ممبران اسمبلی سے ایچ ڈی کمار سوامی کی حمایت میں دستخط لیا ہے۔ دونوں پارٹیاں ان حمایتی خطوط کے ساتھ گورنر سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر گورنر نے ان سے ملاقات نہیں کی تو دونوں پارٹیوں کے ممبران اسمبلی راج بھون کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب خبر بنگلورو سے۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد یہاں کی سیاسی حالات کافی دلچسپ بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبھی پارٹیاں حکومت سازی کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اپنی اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جے ڈی ایس ممبران اسمبلی کی میٹنگ ہوئی، جس میں ایچ ڈی کمار سوامی کو ایوان کا لیڈر منتخب کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے سیکولر ووٹوں کی تقسیم کر کے 104 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم مودی پر بھی نشانہ سادھا
उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मतलूबा तादाद नहीं है, ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि बीजेपी हुकूमत बनाएगी। कुमारस्वामी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि जेडीएस के मेंबरान असेंबली को खरीदने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी काले धन को ख़त्म करने की बात करते हैं और उनकी ही पार्टी बीजेपी हमारे कुछ मेंबरान असेंबली को 100 करोड़ रुपए और काबीना वज़ीर का ओहदा देने का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश करती है। ये 100 करोड़ रुपए ब्लैक का होगा या वाइट का, इनके पास मेंबरान असेंबली को देने के लिए पैसे हैं, लेकिन लोगों को वादे के मुताबिक देने के लिए 15 लाख नहीं है। एक और खबर कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के ही ताल्लुक से है। असेंबली इंतखाबात तो हो चुके हैं, लेकिन अब कई सारे इम्कानात वगैरह जाहिर किए जा रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के तमाम 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई है। इसके साथ उनका दिल्ली और पंजाब से बाहर पैर जमाने का ख्वाब टूट गया है। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक इंतखाबात में 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवारों ने बेंगलुरु से इंतखाब लड़ा। सर्वज्ञा नगर असेंबली सीट से कांग्रेस के माहिरीन के जॉर्ज के खिलाफ मैदान में उतरे आप के उम्मीदवार पृथ्वी रेड्डी को 1861 वोट मिले और उन्होंने चौथा मकाम हासिल किया। और दूसरी जानिब मज़कूरा इंतखाबात में योगेंद्र यादव की क़यादत वाली स्वराज इंडिया भी रियासत में 11 सीटों पर मैदान में थी। उसके उम्मीदवार पुथनिया को मेलकोटे सीट पर 73,769 वोट मिले और वो दूसरा मकाम पर रहे। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में सबसे बड़ी जमात के सबब गवर्नर से हुकूमत तश्कील के मदऊ किए जाने के बीजेपी के मुतालबे पर कांग्रेस की सीनियर लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी में उसूल तब्दील नहीं हो सकते। कर्नाटक में अकेले सबसे बड़ी पार्टी का हक कैसे हो गया। उन्होंने सवाल पूछा कि गोवा, मणिपुर और मेघालय में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, तब हमें हुकूमत बनाने का मौका क्यों नहीं मिला। क्या 5 साल जेडीएस का वज़ीर आला होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कोई तफसील अभी तय नहीं की है। हम दोनों मिलकर 117-118 मेंबरान असेंबली हैं। हम मुस्तहकम हुकूमत देंगे। अगर गवर्नर ने बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया तो इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसा चलेगा, रिश्वत चलेगी और मेंबरान असेंबली की तोड़ फोड़ होगी। मुझे भरोसा है कि गवर्नर आइन के वक़ार के मुताबिक काम करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देंगे। जब हमारे पास 117 मेंबरान असेंबली हैं जबकि उनके पास 104, तो कौन मुस्तहकम हुकूमत देगा। हुकूमत के 5 साल चलने की सवाल पर उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी हमारे वज़ीर आला होंगे। आप 5 साल पर क्यों फिक्रमंद हैं। जेडीएस की क़यादत में हमारी हुकूमत बनेगी और 5 साल चलेगी। कोई नसीहत वज़ीर आज़म और अमित शाह को। वो गुजरात में भी 150 सीट ले रहे थे, लेकिन शायद ईवीएम ने उनकी पूरी मदद नहीं की। जेडीएस से इत्तेहाद के सवाल पर सीनियर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सिर्फ मैंने नहीं बल्कि अशोक गहलोत और वेणुगोपाल ने भी जेडीएस से इत्तेहाद करने में अहम रोल निभाया है। एक और खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद अब यहाँ की सियासी हालात दिन ब दिन बल्कि घंटा घंटा दिलचस्प बनते जा रहे हैं। खरीदो फरोख्त के साथ साथ मुंतखब मेंबरान असेंबलियों को वजारत की लालच देकर अपने पाले में करने की कोशिश भी तेज़ हो गई है। कांग्रेस के एक मेंबर असेंबली ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें हिमायत देने के बदले में वजीर बनाने की पेशकश की थी, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जेडीएस के एक और मेंबर असेंबली टी ए शरवन्ना का कहना है कि उनके 3 मेंबरान असेंबलियों से बीजेपी ने रब्ता किया था। पार्टी मेंबरान असेंबली की मीटिंग में शामिल होने से पहले मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हम सब मुत्तहिद हैं। तकरीबन 80% मेंबरान असेंबली यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी दीगर भी रस्ते में हैं और वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कुमारस्वामी जो भी फैसला लेंगे हम सब उनके साथ हैं। दरियासना रियासत में हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ बीजेपी के लीडर एस.वाई. येडियुरप्पा का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस के कुछ मेंबरान असेंबली उनके राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। एक और खबर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के ही ताल्लुक से है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम अक्सरियती 17 नशिस्तों पर बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि इससे पहले 2013 में उसे सिर्फ 3 नशिस्तें मिली थी। इस बार बीजेपी को 3 मजीद नशिस्तों का फ़ायदा हुआ। वहीं इस बार कांग्रेस के खाते में 10 सीटें ही आई हैं, जबकि 2013 में उसे 11 सीटें मिली थी। यानी इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ। कांग्रेस के बाद मुसलमानों के लिए मुतबादिल के तौर पर देखी जा रही जेडीएस इस बार सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई, जबकि 2013 में उसके खाते में 2 नशिस्तें आई थी। यानी इस बार जेडीएस को भी 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा इन सीटों पर बकिया लोगों का तो खाता भी नहीं खुला, जबकि 2013 में उनके हिस्से में भी 1 नशिस्त आई थी। कर्नाटक की इन 17 नशिस्तों पर मुस्लिम सोसाइटी से मुंसलिक वोटर मुअस्सिर साबित हुए हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक की इंतखाबी मसावत के साथ हिंदुत्व का भी मसला छाया रहा। इसकी वजह से बीजेपी
पोलराइजेशन के सहारे मुस्लिम असरात वाली बहुत सी नशिस्तें जीतने में कामयाब रही हैं। कर्नाटक की 18 नशिस्तों पर मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर फैसलाकुन किरदार अदा करते रहे हैं। 2013 की असेंबली इलेक्शन में 18 नशिस्तों में 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस उम्मीदवारों को ही इलेक्शन में जीत दिलाई थी। बीजेपी ने भी 4 नशिस्तों पर कब्जा किया था। कांग्रेस के बाद मुसलमानों के लिए मुतबादिल के तौर पर देखी जाने वाली जेडीएस सिर्फ 2 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा एक सीट दूसरे के खाते में चली गई। अब खबर यूपी से। यूपी कांग्रेस कमेटी के सदर राज बब्बर बुध को वाराणसी पहुंचे हैं। राज बब्बर ने यहां फ्लाईओवर हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की है और उनकी कैफियत जानी है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राज बब्बर ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि पुल को इंतखाबात से पहले तैयार करने के लिए 3 विनायक मंदिरों को तोड़ा गया था, इसलिए लोगों का ये मानना है कि हादसा भगवान विनायक की बद्दुआ की वजह से ही हुआ है। मीडिया से बातचीत के दौरान राज बब्बर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि बनारस के रुकने पार्लियामेंट होने के नाते पीएम मोदी को यहां आना चाहिए था, लेकिन वो कर्नाटक इंतखाबात में मसरूफ रहे। राज बब्बर ने रियासती हुकूमत से महलूकीन के अहल खाना को 50-50 लाख रुपये और जख्मियों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की है। अब खबर मुंबई से। मुंबई हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देने के बावजूद एक शख्स की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए अपने एक अहम तरीन फैसले में इस बात का हुक्म दिया है कि घरेलू तशद्दुद कानून बराए 2005 के तहत अगर कोई मुसलमान खातून तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करेगी तो उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जस्टिस भारती डोंगरे ने इस मसले पर एक नौजवान की अर्जदाश्त मुस्तरद करते हुए उसकी बीवी और 2 बच्चों के लिए मुआवजा और घर का किराया के तौर पर माहाना 1,05,000 रुपये देने की हिदायत दी है। इस मामले में अर्जी गुजार नौजवान ने कहा कि हम इस्लामी अलवी बोहरा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फ़िरका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत है, इसलिए घरेलू तशद्दुद कानून हम पर नाफिज नहीं होता। इसके मद्देनज़र अदालत इस मामले की समाअत ना करे। जस्टिस भारती ने कहा कि मज़कूरा कानून के तहत खातून को हुकूक हासिल हैं और उसके तहत मुसलमान खातून नहीं आती हैं, इसका जिक्र कहीं नहीं है। इंसदाद घरेलू कानून ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दिया गया है, इसलिए उसे दीगर क़वानीन से मुंसलिक किया गया है और इस मामला किसी मखसूस मज़हब के ख़वातीन को उसे दूर नहीं रखा जा सकता। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगल के रोज़ एक बड़ा हादसा पेश आया था। कैंट स्टेशन के सामने ज़ेर तामील पुल का एक हिस्सा गिर गया। इसकी जद में कई गाड़ियां आ गई हैं। हादसे में एनडीआरएफ की टीम ने 18 मौतों की तस्दीक की और 30 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। मज़कूरा हादसे के बाद वाराणसी के नायब वज़ीर आला केशु मौर्या ने 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अलावा अजीम उन्होंने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो 15 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। मामले का जायज़ा लेने के बाद केशु प्रसाद मौर्या ने ट्वीट करते हुए मज़कूरा मामले में दुख का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र है कि कॉर्पोरेशन के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एस.सी. तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र सिंह और आर सोडार को मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही एक और अहलकार को भी मुअत्तल किया गया है। अब खबर जिनेवा से। मुख्तलिफ यूरोपीय शाही ख़ानदानों की मिल्कियत में रहने वाला नीला हीरा यानी ब्लू डायमंड 67 करोड़ रुपए में नीलाम हो गया है। भारत की कान से निकाला गया 6.16 क़िरात वज़न का हामिल नीले रंग का हीरा हिस्पानवी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया में शाही ख़ानदानों की मिल्कियत में रहा। इस नीले हीरे की नीलामी स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत जिनीवा में हुई। नीलामी के इंतजाम देखने वाली सोथीहेंस कंपनी को उम्मीद थी कि यह हीरा $53 लाख में नीलाम होगा। इस हीरे का मुकम्मल नाम फॉर्नेस ब्लू डायमंड है, जो उर्दन की शहज़ादी एलिज़ाबेथ फॉर्नेस को शादी में तोहफे के तौर पर मिला था। एलिज़ाबेथ फॉर्नेस ने 1715 में उर्दन की शहज़ादा फिलिप वी से शादी की थी और ये शादी का सबसे कीमती तोहफा था। बादशाह ये नीला हीरा इस ख़ानदान की रिवायत बन गया और आने वाली नस्लों को बतौर तोहफा दिया जाने लगा और फिर उर्दन से फ्रांस, इटली और फिर ऑस्ट्रिया जा पहुँचा। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी की मशरक़ी सरहद पर हक़ वापसी के हुसूल के लिए एहतिजाजी मुजाहरे करने वाले फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से हर उम्र की शहरी शहीद हुए हैं। इनमें कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। 2 रोज़ कबल गज़ा की सरहद पर मुजाहरों के दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना तशद्दुद से शहीद होने वालों में एक 8 माह की शिरकार लैला अल-गंदूर भी शामिल है। लैला की मां ने बताया कि इसराइली फ़ौज की तरफ से निहत्ते मुजाहिरीन के सरों पर जहरीले आंसू गैस की बारिश बरसा दी, जिसके नतीजे में शहरी दम घुटने से मुतासिर हुए। मुतासिरीन में उसकी बच्ची भी शामिल थी, जो बादशाह मंगल की सुबह अस्पताल में दम तोड़ गई। गज़ा वज़ारत सेहत ने मंगल को बताया था कि इसराइली फ़ौज की आंसू गैस की शेलिंग से मुतासिर होने वाली एक बच्ची भी दम तोड़ गई, जिसके बाद गज़ा में शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 60 तक जा पहुँची है।
ایک اور تازہ خبر فلسطین سے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں سوموار کے روز اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے 60 مظاہرین کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان مشرقی سرحد پر تصادم ہوا۔ اس موقع پر پرامن فلسطینی مظاہرین نے سرحد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جس پر قابض فوج نے مظاہرین پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت 51 سالہ ناصر غراب اور 18 سالہ بلال الاشرم کے ناموں سے کی گئی ہے۔ قابض فوج کی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے 417 فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 30 مارچ کے بعد سے فلسطین میں جاری تحریک حق واپسی کے دوران اسرائیلی فوج نے مجموعی طور پر 116 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان میں 61 فلسطینی صرف 14 مئی کو شہید کیے گئے، جبکہ 6 ہفتوں کے دوران قابض فوج نے 12,000 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے آپ کو اطلاع کر دیں کہ کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے ہمارے روزانہ کے ڈیلی ویڈیو نیوز کے وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم یہاں پر اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم